Why did I leave Christ University? Hi guys, my name is Manveen Kaur and today I'm going to give the answer to this question that has been flooded in my DMs on why did I leave Christ University. Before jumping to the answer, I'm going to give you a story time, what happened and how did I come to this conclusion that I have to leave Christ University. So the results of Christ came in May end that I have gotten into Christ University Central Campus, and over there I was allotted my first preference, that was BCom in Finance and Accountancy. So I was really happy at that point that I got into Christ because I really wanted to get into Christ. So basically I tried out for 3 colleges, NMIMS, Narsi Munji, that's in Mumbai, and then I tried out for Christ and Delhi University. I've got into all 3 universities, but the result of Christ came out first, so I went ahead with that, and for basically 40 days I studied there. The course that I chose in Christ was integrated with chartered accountancy, and I am happy about that. I was like, okay, it's fine, it works, because the course, professional course that fascinated me the most was CA. From a very long time, since the time that I had opted for commerce with maths in my 11th and 12th, I knew that if I want to pursue a professional course, this would be the one, and I was fine with that. I was like, okay, it works. And then you know what happens in BCom and FNA? FNA stands for Finance and Accountancy. BCom FNA classes start at 7 a.m. in the morning and they end at somewhat around 7 p.m. or 6 p.m. in the evening, and that is a little too much for a person who's just done their 12th, right? And also you're forced to study from the faculty that they are asking you to study. The people who are pursuing BCom and Christ, like only BCom, right, their classes are like from 7 to 12, right? 7 to 12 or maybe 7 to 1 sometimes. 7 in the morning and then it lasts till 1 p.m. which is fine. Even we used to attend our BCom classes, and then after BCom classes we used to have our CA classes, which used to go till 5:30 in the evening, and also sometimes 6. It depends, okay? And then you're asked to study from that faculty only. I asked them if I could study it online from my laptop and have an online coaching. They didn't allow me that. Why I chose Christ University was because of its extracurricular activities, the exposure that it offers. But in my course, it was so limited. I couldn't even go to that. I couldn't even experience that exposure because from 7 to 7 you have to study. You're in the college and you're studying, and then there are no leaves. You do not get any Saturdays or Sundays as a leave. You have to attend classes even on Sundays, right? And then Independence Day ki chutti nahi, Diwali ki chutti nahi. I become a packed person. I did not know anything in Bangalore except my college at that point of time. And also, I was like, I'm new to Bangalore, so I'll go and explore something. I went to Church Street over there. एंड संडे की मैं इवनिंग में गई बिकॉज संडे की सुबह में क्लासेस होती हैं, सिर्फ इवनिंग में नहीं होती, ठीक है? अदरवाइज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इट स्टार्ट्स एट 7 एंड एंड्स एट 7, बट संडे को सिर्फ सुबह सुबह में होती है, लाइक 9 AM to 1 PM. सो आई हैड द इवनिंग, सो आई वेंट टू चर्च स्ट्रीट एक दिन, एंड देन मैं वापस आई. मेरे को कोल्ड वोल्ड हो गया क्योंकि मेरे को इतना पैक्ड दिन होता है, एंड उसमें भी आपको जा रहे हो वापस आ रहे हो, इट गेट्स हेक्टिक. एंड देन फिर उसके बाद मैं 2 दिन कॉलेज नहीं जा पाई बिकॉज भाई बहुत हेक्टिक हो जाता है एक्चुअली स्केड्यूल. बिकॉज एक 12th का बच्चा जो भी निकल के आया उसके लिए एकदम से इतना टफ एनवायरनमेंट में सेट होना इज़ नॉट दैट ईजी, ट्रस्ट मी. एंड अगर आप लोग जेन्युइनली सीरियस हैं, यू वांट टू परसू CA अहेड एंड आपको क्राइस्ट से ही पढ़ना है, अगर आप उनकी फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में दूसरी एक वीडियो बना दूंगी. ऑनेस्टली फैकल्टी के ओपिनियन सबके अलग अलग होंगे. दे वर नाइस, दे वर अमेजिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ना, इफ दे एक्चुअली वांट टू जस्ट डू CA इन देयर लाइफ और नॉट. अगर आप पैशनेटली सीरियस है CA करने के लिए, देन दैट कोर्स इज मे बी फॉर यू. बट अगर आपके अंदर और भी टैलेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई थिएटर का टैलेंट, डांसिंग का टैलेंट, मेरे को बहुत सारे क्लब्स में ऐसा पार्टिसिपेट करना था. Because since childhood I've been into theaters, dramatics, dancing, and being on the stage is my thing. I really enjoy it. तो मैं करी भी वो क्राइस्ट में एक बार. In 1 month I did it once and I'm really grateful that I did it. I was participant in Darpan and I performed in Darpan in theaters. So I was a part of proscenium over there and it was such an amazing experience. तो वो भी जो मैंने किया, मैंने अपनी क्लासेस बंक करके किया है. क्लेम्स नहीं मिलते उसके लिए, CA की क्लास के लिए, तो वो मैंने बंक करके अपना क्लास वो अटेंड किया है. एंड दे वर लाइक कि
यही अभी पढ़ना है, इधर अभी मत जाओ। तो यार अगर मैं वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस करूँगी जो चीज़ें मुझे और भी करनी है, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट टैग कि मैं क्राइस्ट में हूँ, अगर मैं अपना वो एक्सपोजर ही ना फील कर सकूँ। डू यू गेट व्हाट आई मीन? एंड देन इट एक्चुअली गॉट इन टू माई नर्व्स कि भाई मुझे मेरी और भी साइड चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। अगर एंड देन मेरा ड्यू का फिर एक पॉइंट पे रिजल्ट आता, एंड देन आई गॉट इन टू ड्यू, एंड देन आई ऑल्सो गॉट इन टू NMIMS, बट NMIMS में मुझे BBA मिल रहा था, एंड आई ऑलवेज वांट टू डू BCom अहेड इन लाइफ। तो BBA का कुछ सेंस नहीं बना मेरा उधर से करने का। मैं इधर ड्यू का रिजल्ट का वेट करी, मेरा ड्यू का रिजल्ट आ गया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं क्राइस्ट छोड़ दूँगी, ठीक है, क्योंकि नहीं उधर मैंने अपने आप को सोचा आगे के 3 इयर्स कि क्या मैं इधर सेटल हो पाऊँगी इस कोर्स में, जो मेरा कोर्स था। अगर मैंने उधर BCom चूज़ किया होता, देन आई थिंक कि क्राइस्ट इज़ लिटरली द मोस्ट वंडरफुल ऑप्शन जिसके लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपोजर है। सिर्फ 7 to 12 क्लासेस है, उसके बाद भाई चिल है, फन है, आप अपना सब क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, या आपको अगर खुद का कुछ पढ़ना है, CA खुद से पढ़ना है, या आपको CFA या वट एवर यू वांट टू डू अहेड इन लाइफ खुद से करना है, आप कर सकते हो। प्लेसमेंट्स का ऑप्शन ज़्यादा BCom वाले नॉर्मल कोर्सेज के लिए रहता है, विच इज़ DOC डिपार्टमेंट। क्राइस्ट में भी डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है BCom के ही अपने आप में। एक DOC डिपार्टमेंट है, एक DPS डिपार्टमेंट है। DOC स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड DPS स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जिसमें मैं थी। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ विच इज़ DPS, उसमें हर एक कोर्स के साथ, हर एक प्रोग्राम के साथ एक कोर्स इंटीग्रेटेड होता है। मेरे कोर्स के साथ CA इंटीग्रेटेड था, कुछ कोर्सेज के साथ ACCA, CPA, सीमा, अलग अलग कोर्सेज इंटीग्रेटेड होते हैं। तो वो आपको एक बारी क्राइस्ट के उस पर जाके ब्रोशर पे चेक करना पड़ेगा, उसमें कोर्सेज के ऑप्शन में कि किसके साथ क्या इंटीग्रेटेड है, एंड देन ओनली चूज़ योर कोर्स। प्लीज़ ऐसे मत करना, वरना बहुत बड़ी गलती होगी उधर जाके। यू विल रियलाइज़ कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, नहीं समझ आएगा। प्लीज़ एक बारी उनके ब्रोशर पे जाके सब चेक करना कि कहाँ आप क्या चीज़ डाल रहे हो, जब आप उसके लिए एम करो, ठीक है, फिर ही चूज़ करना। क्राइस्ट बहुत अच्छा कॉलेज है, बट तभी अच्छा है अगर आप एक अच्छा कोर्स अपने लिए चूज़ करो। तो जो मैंने कोर्स चूज़ किया वो वंडरफुल कोर्स था, स्पेशलाइजेशन के साथ था BCom की, एंड लिटरली बहुत अच्छा कोर्स था। बट तभी अच्छा है अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हो CA करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप और भी चीज़ें करना चाहते हो अपने कॉलेज के वो 3 इयर्स में, एंड नहीं ना कि सिर्फ CA, तो शायद वो कोर्स नहीं था आपके लिए। एंड ये मुझे रियलाइज़ करने में it was genuinely really overwhelming for me to decide that कि क्या मैं CA के अलावा और भी चीज़ें करना चाहती हूँ, या क्या मैं सिर्फ CA करना चाहती हूँ। एंड आपको अकेले बैठना पड़ेगा, आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। सो प्लीज़ गाइज डू सिट विद योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ कि वॉट डू यू वांट टू डू अहेड इन लाइफ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन DM मी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं इधर लगा दूंगी। एंड ऑल्सो अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू आंसर इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।